کو مجید اللہ خان فرد کو اللہ صحت دے کہ اس شعر کو اس علی کے شعر کو اللہ طاقت دے اور ہماری سرپرستی میں قیام رکھے۔ آج یہ جلسہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جلسہ بہت قسمہ پرسی کی حالت میں مسجد کو آج حملہ کیا گیا، تمہاری قرآن کی بے حرمتی کی گئی، تم خاموش بیٹھے رہے ہیں گاندھی بھون میں۔ اللہ تعالیٰ اگر فرض کریے قیامت آئے گی تو سب سے پہلے وہ گاندھی بھون پہ قیامت آئے گی، میں سمجھتا ہوں۔ اور تیلگو میڈیا کیا کہہ رہی ہے کہ کسی ایک دلت کی، کسی وہ گونڈ ذات کی، یعنی جو قبائل کی ایک خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اس لیے یہ فساد کیا گیا۔ وہ لوگ غصے میں ہیں۔ میری بچی بودن میں معصوم بچی لاچار ماں کی دوا لانے کو نکلتی ہے، اس یہاں کا ایک سٹنگ کارپوریٹر اس کی عزت لوٹ لیتا ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا سارے تلنگانہ کو جلا دوں؟ میں کیا کروں؟ کیا سارے ہندوستان کو جلا دوں؟ بتاؤ۔ وہ ریپ کرتا ہے، اس کے بعد میں اس کو پولیس گرفتار کرتی ہے، 14 دن کے بعد میں وہ باہر آ جاتا ہے۔ آج بتلاؤ، یہ یہاں کے کانگریس کے وزیر اعلیٰ کی راج میں ایک مسلم لڑکی کی جو اپنے ماں کی دوا لانے کے لیے نکلتی ہے، اس کا اغوا کیا جاتا ہے، اس کا ریپ کیا جاتا ہے۔ بتلاؤ، کوئی مائی کا لال ہے جو اس پر آج بول رہا ہے تلنگانہ؟ جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم زیر اہتمام مجلس بچاؤ تحریک زیر نگرانی مجید اللہ خان فرد صدر مجلس بچاؤ تحریک منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ بیرون جو مقرر آئے ہیں میں ان کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ایشو یہ ہے کہ یہ جو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے آج، اللہ کے فضل سے پچھلے 33 سال سے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 33 سال پہلے ایک لڑکی دیتا، وہ آج جو ہے ناتا نواسی والی ہو جاتی، آج اس کی شادی ہو جاتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا 3rd جنریشن گریجویٹ ہو جاتا۔ تو ایک طویل عرصہ ہے یہ 33 سال کا، ایک دو دن نہیں بلکہ 33 سال کا جو ہے ایک طویل عرصہ ہے۔ میں صرف اور صرف ان تمام لوگوں کو یاد کر رہا ہوں جب سے اسٹیج پر بیٹھا تھا کہ ہم جب پہلا جلسہ منعقد کیے تھے، مجلس بچاؤ تحریک قائم کیسے ہوئی، کہ جب غازی ملت نے بابری مسجد کی شہادت کے اوپر اپنی مخالفت اور سازش کے خلاف میں جب آواز اٹھائی تو لوگ یہ سمجھے کہ غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کو جماعت سے معطل کر دیں گے اور یہ ان کی سیاسی زندگی ختم ہو جائے گی، ان کی آواز دب جائے گی۔ تو غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان نے کوئی دوسری جماعت قائم نہیں کی۔ کسی دوسری جماعت میں جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ منتری بن جاتے، ڈپٹی چیف منسٹر بن جاتے یا اسپیکر بن جاتے۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ غازی ملت کو معطل کرنے کے کچھ ہی دن بعد میں یہی چندرا بابو نائیڈو، جب این ٹی راما راؤ بقید حیات تھے، زندہ تھے، ان کے داماد بن کر گھر پر آئے اور غازی ملت کو ایک کہنے لگے کہ آپ ہماری جماعت میں آئیے، ہم کو ایک سیکولر لیڈر کی ضرورت ہے، آپ کو تیلگو بولنا اچھا آتا ہے، ہم کسی اضلاع سے آپ کو انتخابات میں حصہ ہم لڑائیں گے اور آپ جو چاہے وہ پوسٹ ہم دیں گے۔ کچھ دن کے بعد میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ وجے بھاسکر ریڈی کا فون آتا ہے کہ آپ کانگریس میں آئیے، ہم آپ کو جو چاہے وہ پوسٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن مرحوم غازی ملت کی ایک ہی بات تھی کہ میں ہرے جھنڈے تلے آیا اور ہرے جھنڈے تلے جاؤں گا میں، اور کوئی دوسری سیاسی جماعت میں نہیں گئے بلکہ مجلس بچاؤ تحریک کو قیام عمل میں لائے۔ اور آج اللہ کے فضل سے 34 سال ہو گئے مجلس بچاؤ تحریک قیام ہو کر، اور یہ 33واں جلسہ ہے۔ ہم جب پہلا جلسہ کر رہے تھے تو مجھے آج بھی وہ چہرے یاد ہے کہ ہمارے حضرت مولانا محمد فیروز عزیزی صاحب میری اس بات کی گواہی دیں گے، یہ شروع جلسے میں آتے تھے، ہمارے ساتھ ایک مجاہد اہل سنت مرحوم جہانگیر پہلوان صاحب تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ غلام رسول بلیاوی
ये जलसे के बानियों को मैं याद कर रहा हूँ आज। वो आज हमारे साथ नहीं है, आज नहीं है। मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी जो पहली मर्तबा तौक़ीर रज़ा खान साहब को इस स्टेज पर लाए थे, वो आज हमारे दरमियान नहीं है। उनका इंतकाल होकर 2 साल हो रहा है। अल्लाह ताला उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। लोग चले गए लेकिन बात याद रह गई, लोग चले गए, जलसा क़याम रह गया। गाजी मिल्लत जब एमएलए थे तो लोग कहते थे कि जमात में एमएलए है इसलिए ये जलसा होता है। 99 में जब गाजी मिल्लत इलेक्शन हारने के बाद में लोग ये कहने लगे कि अब गाजी मिल्लत एमएलए नहीं है, अब ये जलसा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने जो पहले जैसा जलसा होता था उससे ज्यादा और उससे शाना शान मौके पर इस जलसा हुआ। और गाजी मिल्लत मरहूम के इंतकाल के बाद में फिर लोग चैलेंज किए कि अब करके बतलाओ जलसा कि मरहूम अमानुल्लाह खान साहब नहीं है। मेरे सामने हमारे कारी महराज अहमद साहब हैं। ये मैं समझता हूं कि जब इनकी उम्र 5 या 6 साल की थी, मरहूम जहांगीर पहलवान के नवासे हैं यहाँ पर बैठे हुए। पिछले 33 साल से ये जलसे में खिरात आकर यहाँ पर नात पढ़ते हैं। तो आज मरहूम आदम मलिक एडवोकेट साहब ने जब इस जमात की सदारत संभाली तो उनके दौर में भी जलसे हुए। आदम मलिक एडवोकेट के इंतकाल के बाद में मरहूम डॉक्टर कायम खान साहब इस जमात की सदारत किए और इस जलसे की निगरानी किए। उनकी निगरानी में भी तकरीबन मैं समझता हूं कि 7 या 8 जलसे हुए। आज अल्लाह मजीदुल्लाह खान फरद को अल्लाह सेहत दे कि इस शेर को, इस अली के शेर को अल्लाह ताकत दे और हमारी सरपरस्ती में क़याम रखे। आज ये जलसा मैं समझ रहा हूं कि ये जलसा बहुत कसमा पुरसी की हालत में अल्लाह ताला पार करता है। ये जलसे में हम जो भी मुखर्रिर को बुलाते हैं, नित नए हम पर इल्जामें लगते हैं, बड़ी अफसोस होता है। लेकिन जब जलसा कामयाब हो जाता है, मुखर्रिर आ जाते हैं, तो मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। और अल्लाह ताला इस गुनहगार को मैं समझता हूँ कि तकरीबन 25 जलसों से बढ़ के अल्लाह ताला मोतमद इस्तक़बालिया रखा है इस गुनहगार बंदे को। मैं ज्यादा कोई तकरीर नहीं करूंगा, बल्कि दिल की गहराइयों से तमाम तहरीक के रुफाकार की तरफ से मैं मुजाहिद अहले सुन्नत शेर हिंदुस्तान जनाब हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हालांकि इससे पहले भी आए थे, अब फिर ये दूसरी मरतबा हमारे स्टेज पर आए हैं। आपको भी अल्लाह ताला सेहत दे। बहुत सेहत खराब रहने की वजह से ये सफ़र ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस शेर को, इस बरेली के शेर को, नबी करे इस आला हज़रत के नबीरे को अल्लाह ताला सेहत दे, ताकि हिंदुस्तान में जब फासिस्ट तंजीमें, जब आरएसएस ये सोचती है कि मुसलमानों का कोई नहीं है, लबकुशाई अगर करने की कोशिश करती है, तो एक आवाज आती है बरेलवी से, वो आवाज होती है मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब की। वरना तो आज हमारे मैं तमाम उलमा मशाइखीन को नहीं कहता, लेकिन कुछ उलमा मशाइखीन तो आज ऐसे हैं, कोई बीजेपी का एजेंट, तो कोई आरएसएस का एजेंट, कोई सरमाएदारों का एजेंट। लेकिन कल ही जब मैं गाड़ी में जिक्र हो रहा था कि जब हिंदुस्तान में जब आप अक़लियतों की आवाज लगाते हैं तो आप तनाव तकदीर हो जाते हैं, आपको दोस्त अहबाब आपसे किनारा कश हो जाते हैं, सरमाएदार लोग आपको दावत में नहीं बुलाते हैं, लेकिन आप अपनी जगह अल्लाह के जन्नत में बनाते हैं। आप अपनी जगह, जब आप दुनिया में हक और ताकत, हक के लिए आप जब लड़ते हैं, तो और एक बेहतरीन मुखर्रिर हमारे दरमियान में है। मैं तमाम जितने लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है कि सब्र से बैठिए। आप 3 बेहतरीन मुखर्रिर आपके सामने और 1-2 शोरा कराम आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। हजरत मौलाना मुफ्ती एहसान चतुर्वेदी साहब हैं। कई दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि कोई एक चतुर्वेद को इस जलसे में बुलाऊं, कि आज गैब से एक चतुर्वेद, क्योंकि आज जो है इस्लाम का जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस्लाम का और मुसलमानों का जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसको अगर सही मायनों में अगर कोई समझा सकता है अगियार के सामने, तो वही समझा सकता है। जो चतुर्वेद होता है वो वही समझा सकता है। तो मैं अल्लाह ताला मुझसे यही पिछला जो जलसा था, पिछले जलसे में मैं एक बहुत बड़ी बात बोल गया था, लेकिन अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी। मैंने कहा था कि अगर बड़े मोदी को हराना है तो
तेलंगाने से छोटे मोदी को हरा कर बताओ तो अल्लाह ने मेरी जबान की लाज रखी। लोग मजाक उड़ाए कि ये सोचे कि क्या केसीआर को कोई तेलंगाने से इलेक्शन हरा सकता, क्या बोलकर सोच सकते थे। इस वक्त का जो 9 साल का वजीर आला था उसको कोई हरा सकते क्या बोलकर सोच रहे थे। लेकिन अल्लाह मेरी जबान की लाज रखा और ना सिर्फ छोटे मोदी को हराया गया बल्कि बड़े मोदी को कमजोर कर दिया गया अल्लाह ताला। आज नित नए साजिशें की जा रहे हैं, कहीं वक्फ बिल अमेंडमेंट एक्ट आपके सामने ला रहे हैं और बड़ी हैरत की बात यह है कि वक्फ के जमीनों के लुटेरे, वक्फ के जमीनों के चोर दलाल आज वक्फ को बचाने की बातें कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात होती है। मैं मौलाना तौकीर रजा खान साहब से गुजारिश करूंगा कि इस पर भी आप अपनी तकरीर में रोशनी डालिए कि कौम के दलाल आज वक्फ को बचाने के लिए निकल रहे हैं। आगे भी और जलसे होंगे, इसका जवाब मुनज़्ज़म अंदाज में दिया जाएगा। तो मैं इसी इन चंद कलिमात के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। 2-3 शुरा इकराम हैं और एक बेहतरीन हमारे शेख जलील निजामी साहब यहाँ पर मौजूद है। ये आपको इस बात का इजाज़ है कि आपने एक नज़म लिखी थी कि केसीआर बाय बाय बोलकर, केसीआर बाय बाय। तो अब आप छोटे चिन्ना अन्ना के बारे में भी कुछ लिखिए। चिन्ना अन्ना भी बहुत खुदक रहे हैं। अरे बेवकूफ, अगर फर्ज करिए बड़े छोटे मोदी को हरा सकते हैं तो तेरा भी वक्त है। इस कांग्रेस हमने बहुत अरमानों से, हमने बहुत मेहनतों से हमारे मसाजिद के इमाम, हमारी मसाजिद के कमेटी दर दर गली गली फाखे फिर फिर कर कर्नाटक में कांग्रेस को इख्तिदार पर हमने लाया। मुसलमान की जूती जिसके सर पर वो वजीर आला, हमने उनको इख्तिदार पर लाया। और यही तेलंगाने में हमने गली गली फिरकर, हमने हर मुकाम पर फिरकर हमने कांग्रेस को इख्तिदार पर लाया। हमने वो कांग्रेस को इख्तिदार पर लाया जो राहुल गांधी की शक्ल में मोहब्बत की दुकान की बात की गई थी। हमने उस कांग्रेस को इख्तिदार पर लाया जिसने, जो प्रियंका गांधी हमारे को मुस्लिम डिक्लेरेशन 5000 करोड़ का वादा किया गया था, हमने वो कांग्रेस को लाया। हमने वो कांग्रेस को इख्तिदार पर तेलंगाना में नहीं लाया कि 8 महीने के अंदर 20 फिसादात हुए और अक़लियतों के ऊपर हमले हुए, एक मस्जिद जागीरदार को शहीद कर दिया गया। आज यहाँ पर तेलंगाना में जैनूर में क्या वाकया पेश आ रहा है, बड़ा अफसोस होता है। अगर गुजरात पार्ट 2 अगर देखना है तो आओ, मैं दावत देता हूं कि जैनूर में जाओ, जाकर देखो। आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही है जबान खोलने की। 140 दुकान जलाए गए, तकरीबन 40 मकानात जल गए। अरे जल जाने दो, सारे दुकानात जल जाने दो, सारे मकानात को जल जाने दो। लेकिन याद रखो, एक मसाजिद की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख हम निकाल देंगे, अगर कोई हाथ उठाकर देखेगा उसका हाथ हम निकाल देंगे। आज लाचार हो गए कि इस कांग्रेस के दौर में कि हमारी 4 मसाजिद पर हमारे हमले हुए और वो कुरान जिसके लिए मुसलमान अपनी जान दे देता है, उस कुरान की बेरुमती की गई। कांग्रेस का वजीर आला आज तकरीबन जैनूर में फिसाद होकर आज तकरीबन 18 दिन होने को आ रहा है, लेकिन आज की तारीख तक वो जबान खोलने के लिए राजी नहीं है। वो तमाम लोग कहां पर है जो बड़ी बातें कर रहे थे। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन, शर्म आनी चाहिए तुमको। याद रखो, ये जो आज कुर्सियों पे फायज है, कल जो बीआरएस के दौर में जो कुर्सियों पे फायज थे वो भी यही सोच रहे थे कि हम खबर में अपनी कुर्सी के साथ जाएंगे। याद रखो, आज उनकी क्या हालत है, गली का कुत्ता उनको नहीं पूछ रहा है। आज जो कुर्सियों पे फायज है, आज तुम्हारी तो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। ये मेरा नारा आज कई दिन से मैं कह रहा हूं। खामोश बैठे हुए हैं कांग्रेस के अक़लियती कायदीन। कल तक जो उलमा मशाइखीन 9 साल तक बीआरएस के दौर में 9 मसाजिद को शहीद किया गया तेलंगाना में, बड़े शर्म की बात है। ये वो उलमा मशाइखीन जो अपनी क़यादत के चोले में छुपे हुए थे, खामोश बैठे हुए थे, आज वो लोग फिर से दोबारा खामोश है। मस्जिद जागीरदार शहीद हो गई, खामोश बैठे हुए हैं। और तेलुगु मीडिया क्या कह रही है कि किसी एक दलित की, किसी वो गोंड जात की, यानी जो कबाइल की एक खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, इसलिए यह फिसाद किया गया।
वो लोग गुस्से में हैं। मेरी बच्ची बोधन में मासूम बच्ची लाचार माँ की दवा लाने को निकलती है, इस यहाँ का एक सिटिंग कारपोरेटर उसकी इज्जत लूट लेता है, तो मैं क्या करूं? क्या सारे तेलंगाना को जला दूं? मैं क्या करूं? क्या सारे हिंदुस्तान को जला दूं? बताओ। वो रेप करता है, उसके बाद में उसको पुलिस गिरफ्तार करती है, 14 दिन के बाद में वो बाहर आ जाता है। आज बतलाओ, ये यहाँ के कांग्रेस के वजीर आला की राज में एक मुस्लिम लड़की की जो अपने माँ की दवा लाने के लिए निकलती है, उसका अगवा किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। बतलाओ, कोई मैं का लाल है जो इस पर आज बोल रहा है तेलंगाना में? अल्लाह ताला अमजदुल्लाह खान को वो ताकत दी, वो आपकी ताकत दी कि मैं गया बोधन, मैं गया जैनूर। बतलाओ, आज बड़े बड़े सरमाएदार है, कोई जेब में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। उस मासूम बच्ची का सारा कोई बना क्या? बतलाओ। तो बहुत सारे भी जलसे होंगे। हर ये 20 जो वाकयात पेश आए पूरे तेलंगाना में, जो मस्जिद की शहादत हो गई, कांग्रेस ये सोच रही है कि अब हमको मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। असेंबली इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, अब जरूरत नहीं है। अरे चिन्ना वो दिन दूर नहीं है, बल्दिया इलेक्शन आने वाले हैं। तुम्हारा सुपाड़ा साफ नहीं किया तो मेरा नाम अमजदुल्लाह खान नहीं, याद रख लो। जब मैं केसीआर के खिलाफ में बोलता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। कैसा हुआ? आज इन्हें भीख का चिप्पा लेके केसीआर बाहर निकला तो कोई मस्जिद या मंदिर के सामने भी इसको भीख देने के लिए नहीं है। अल्लाह की मार कैसी पड़ी? इख्तिदार पर रहते हुए मसाजिद को शहीद किया। जिस दिन इख्तिदार से उतरा, बेटी जेल को चले गई। बेटी जेल को गई नहीं गई? अरे केसीआर, याद कर वो दिन जब तू बैठ के सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को शहीद किया था। 120 साल पुरानी मसाजिद को तू शहीद किया था। आज की तारीख तक वो मेंबर कहाँ है? बताओ। आज की तारीख तक कुरान कहाँ है? बताओ। तुम साथ थे ना भाई? तुम साथ थे ना केसीआर के? केसीआर को मामा मामा कहते रहते और आज केसीआर के खिलाफ में हो गए। ये मौजूदा वजीर आला पुरानी दोस्ती निकल गई, बेस्ट फ्रेंड हो गए। अच्छा, मौजूद जो है तकरीर में बोल रहे हैं कि बच्चे जो है ये जो जुलूस निकाले, ये बच्चे झंडे लेके नाचे, डीजे करे। कौम को खराब किसने किया? कौम को खराब किसने किया? 70 साल की क़यादत तुम्हारी, जितने लोग डीजे लगाए तुम्हारी पार्टी के है नहीं है? बताओ। पूरे फोटोओं के साथ मैं पेश करता हूं। तुम नहीं चाहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस हैदराबाद में निकले? तुम नहीं चाह रही। तुम चाह रही मुसलमानों को बदनाम करना, तुम चाह रही मुसलमानों पर पुलिस का जुल्म होना। ये तुम्हारे ही लोग थे। अरे एक कमेटी में, जो सीरत कमेटी में डाला, किसने डाला? नई कमेटी किसने बनाई? ये पिछले साल मिलादुन नबी में पुरानी कमेटी वालों पर केसेस बुक करके किसने उनको पीडी एक्ट डलवाया? ये तुमने डलवाया। और आज 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही। आज बिल्ली आके बोल रही कि बच्चों झंडे लेके मत नाचो, बच्चों डीजे पे तुम नाचो मत। डीजे लगाने वाले तुम्हारे लोग, ये लारी लाने वाले तुम्हारे लोग, वरना तो हमारी हैदराबाद की तमीज और तहजीब सारे दुनिया में मशहूर है। तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब, हमारी तमीज और हमारी तहजीब पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। तो इंशाअल्लाह और कुछ ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सियासी जलसे शुरू होंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को और 3 मुखर्रिर को सुनना है, आराम से बैठिए। मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह हक चतुर्वेदी साहब को, इसके बाद में हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब जलील निजामी साहब भी आपको मुखातिब करेंगे।